you can link your email with others और with HTML प्रोग्राम। HTML प्रोग्राम के साथ आप अपना ईमेल जो है कैसे लिंक कर सकते हैं, that is given over here. Understand? Okay. So right. So it is given here. See, mail to. Right. We will start from beginning. You are able to see HTML, then head, then title over here. In title, what is given over here? In title is given using mail to keyword, right? Or you can say mail to. Mail to keyword is we are going to use mail to keyword. Mail to जो है आपका keyword है that we are using over here, right? So after that it is written body. Till here there is no problem. After that there is one statement. यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, right? After that anchor tag, that also you are familiar. Anchor text भी आप लोग कर चुके हैं तो उससे भी आप लोग familiar होंगे, right? Here it is given href, h reference is equal mail to colon reader del25@gmail.com. It can be any email ID where you want to send email, right? And then click there for any inquiry. It is just a statement, and after that anchor tag close and body close and HTML close. इससे क्या होगा? When we will save this picture, then you will get the output. What will be the output here? See, it will be your output, right? It will be your output, and here you will click and then you will be redirected to your email, right? अपने email की तरफ आप redirect हो जाएंगे. So it was our how we will use mail to option. ये आगे आपके chapter में है, but today we have done it, so I thought it should be conveyed to you, right? Daily, whatever classes we are doing daily, I am sharing videos of your classes in your group, right? आपको class group में as well as YouTube पे हमारी वीडियो मिलेगी. You can watch it, right? And you can clear your all doubts related to your topics, right? Now अब हम आगे बढ़ते हैं. Yesterday we have covered this, and now we have to start list in HTML, right? HTML में हम लोग लिस्ट कैसे शुरू करेंगे वो देखना है. Before it there is combining tag, right? Combining tag, here it is given h1 tag and font tag together. h1 tag और font tag जो है एक साथ यूज किया गया है लेफ्ट राइट, राइट? सपोज यहाँ पे हमको एक हेडिंग देना है, राइट? हेडिंग देना है तो हेडिंग हम दे सकते हैं. सपोज हमने दिया h1 एंड इनसाइड h1 वी हैव टेकन फॉन्ट स्पेस कलर इक्वल कलर नेम जो भी हो सकता है आपका. सपोज हमने दे दिया ब्लू, राइट? यहाँ पे कलर इक्वल ब्लू. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट हटा देते हैं बिकॉज फॉन्ट वी आर ऑलरेडी टेकिंग, बट वी आर टेकिंग फॉर h1 ओनली. So here I am going to write mail to, and here we will close h1. h1 हम लोग क्लोज कर देते हैं. अब हम लोग इसको सेव करेंगे. Then we will see the difference. हम लोग को डिफरेंस अपने प्रोग्राम के अंदर क्या नजर आता है कि we have taken mail to option. mail to option से हम लोगों ने एक नया प्रोग्राम, पहले हम लोगों ने क्या किया, मेल के ऑप्शन से बनाया था. नाउ वी हैव यूज्ड मेल टू ऑप्शन, राइट? जो हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था मेल के लिए, हियर वी हैव यूज्ड टू डिफरेंट टैग्स, right? h1 tag as well as font tag. It is given on your Sumita Alka book, page number 105, combining tags, right? So we can give two tags together. दो टैग हम लोग एक साथ भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे देखिए फॉन्ट आपका चेंज हुआ कि नहीं,
फॉन्ट इज ब्लू, राइट। ऊपर से हमने फॉन्ट हटाया था, तो दैट मस्ट बी रिमूव्ड। Background is here. Okay, font is given for this only. It is coming for everyone. Okay, let's try it again. ठीक है, क्योंकि हमने एंकर टैग यूज किया, इस वजह से ये जो है ये भी आ रहा है आपका। ठीक है, इट वाज आवर टोटल, यू कैन से इट वाज आवर कंबाइनिंग टैग। नाउ वी हैव लिस्ट इन HTML, राइट। वी विल सी व्हाट इज लिस्ट इन HTML। HTML में लिस्ट क्या होता है, राइट। सो let me show you list in HTML, right। HTML के अंदर लिस्ट क्या होता है? So we have two type of list, you know। HTML list allow web developers to group a set of related items in a list, right। It is given in the book. First of all, list. There are three basic type of list: unordered list, like unnumbered list, numbered list and definition list। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप क्या बोल सकते हैं? वी कैन से इट unnumbered list, right। It is given in book ना, unnumbered list and numbered list। जो नंबर में आते हैं वो क्या हो जाते हैं हमारे? नंबर्ड लिस्ट। एंड देन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, या आप कह सकते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर्ड लिस्ट को आप ऑर्डर्ड लिस्ट बोल सकते हैं। एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट इज गिवन हियर, दैट यू कैन कॉल डेफिनेशन लिस्ट आल्सो, राइट। तो ये आपके तीन डिफरेंट तरह के लिस्ट होते हैं। देखिए, ये आपका जो लिस्ट है ये आपका अननंबर्ड लिस्ट है। इट इज शोइंग यू विद सिंबल्स लाइक बुलेट्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुलेट्स, right। And here it is ordered list, that is called numbered list. You are able to see it 1 2 3 4, right। That is your numbered list, okay। And here you are able to see it is definition list, right। You will see the output of this, it will be your definition list, understand। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लिस्ट का यूज करने जा रहे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। सपोज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? अननंबर्ड लिस्ट का यूज करेंगे, अननंबर्ड लिस्ट। ठीक है, तो हम लोग चलिए करते हैं अननंबर्ड लिस्ट का यूज। हियर आफ्टर बॉडी आई विल यूज इट। बॉडी कलर यहाँ पे हम लोग देते हैं टेक्स्ट कलर रेड कर, ठीक है। अब हमने देखिए क्या किया। आई हैव टेकन अ लिस्ट, यू आर एबल टू सी यूएल। यूएल क्या है आपका? यूएल इज योर अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। जहां हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करेंगे वहां पे हम लोग यूएल यूज करेंगे। एंड फॉर लिस्ट वी विल यूज एलआई। एलआई इज फॉर लिस्ट, right। So see here we have taken UL, here we have closed UL। So UL is which kind of tag? It is container tag, right। Here we have taken LI, here we have taken LI। So LI is which kind of tag? That is your which kind of tag? कैसा टैग है बेटा? LI। ये भी आपका ओपन है, क्लोज है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि ये वैसे अगर हम लोग ना क्लोज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है एलआई को। तो ये आपका यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके हिसाब से तो ये आपका कंटेनर टैग दिख रहा है, बट इट इज एम्प्टी टैग। इफ यू विल नॉट क्लोज देन आल्सो देयर इज नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ वी विल सेव इट, ठीक है। तो हम लोग सेव करते हैं। हियर वी विल राइट हेडिंग आल्सो। यहाँ हम लोग हेडिंग अपने से लिख देते हैं h1 एंड हियर वी विल राइट यूज ऑफ unordered or unnumbered list,
राइट, एंड आफ्टर दैट वी हैव क्लोज H1. H1 हमने क्लोज कर दिया, एंड हियर also we have taken the same. Okay, now we will save it and then we will open it. इसको हम लोग ओपन है हमारा यहाँ पे, इसको हम लोग रिफ्रेश करेंगे। ये आपका क्या है, एक अननंबर्ड लिस्ट जो है क्रिएट हो चुका है। राइट, यू आर गोइंग टू से यूज ऑफ अननंबर्ड लिस्ट। राइट, so we will create unnumbered list like this. Understand? So unnumbered list हम लोग इस तरीके से create करेंगे। Okay. Now if you want to create numbered list, then what you have to see? You will simple change the sign over here. UL, at the place of UL you will use OL. Right? At the place of UL you will use OL. हमने OL यूज किया, and we will save it, and here you will see the result. You will get the numbered list. आपको नंबर्ड लिस्ट नजर आने लगी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नंबर्ड लिस्ट एंड अननंबर्ड लिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक है दैट इज योर, एक टैग हम लोग ऐसा भी बना सकते हैं जिसके अंदर नंबर्ड, अननंबर्ड एंड डेफिनेशन लिस्ट तीनों यूज कर सकते हैं। तो चलिए वो हम लोग बना लेते हैं। हियर वी हैव UL and UL close. Right, now next we have OL यूज कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग OL यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया नंबर, यहाँ अननंबर्ड यूज ऑफ लिस्ट। डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट। राइट, एंड देन वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है हम लोग यहाँ से हम ले लेते हैं, मिल जाएगा। राइट, यहाँ पे हमने ले लिया, एंड हियर वी विल यूज definition list. Sir, voice is not clear. What happened बेटा, आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही है? ध्यान से सुनिए, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन वॉच इट इन वीडियो ऑल्सो। ठीक है, वीडियो जो है बहुत अच्छी क्लियर बन रही है, तो आप लोग वीडियो को भी देखते रहिएगा। अगर आप एक बार क्लास देख लेते हैं, एक बार वीडियो देख लेंगे, तो आपकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होगी वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, अब हम इसको देखते हैं, तो ये देखिए आपकी तीनों जो है लिस्ट क्रिएट हो गई, अनऑर्डर्ड या unnumbered, numbered and definition list. Right, here is some spell error, that is DEFINITION, definition. ठीक है, definition list is here. Now we will save it and refresh it, it will correct. Right, तो ये आपकी क्या है, ये तीन तरह की आपकी लिस्ट हो गई, जो कि आप क्लास 10th में आपको इस पे कई सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअल भी देख लिया लिस्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, एंड यू हैव सीन टुगेदर आल्सो। राइट, सो आज का जो आपका होमवर्क होगा, आज आप लोग इस तरह की जो लिस्ट होगी ना, उसको आप लोग बनाइएगा। एटलीस्ट 3 कंट्रीज के नेम लीजिएगा, उसमें आप अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड एज वेल एज डेफिनेशन लिस्ट में आप जो है
हेडिंग में जो है कंट्री का नाम ले सकते हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन डिस्क्राइब अवर कंट्री, राइट। 2 लाइन्स या 1 लाइन आप लिख सकते हैं। इन द सेम वे you will do it. It will be your homework for today.